after Ranga's marriage. Open your book on page number 17. Just look at the last paragraph. So, if we look at the last paragraph of page number 17, here the author wanted to highlight the point that in olden days, a number of people were not the knowledge of English language. Let us be in detail for this paragraph. So यहाँ पे author wants to highlight the point that what I'm going to tell you is something that happened 10 years ago. Wanted to highlight that point that uh, was telling the environment of 10 years back. यानी यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैं 10 साल पहले की बात अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ. यानी इस पैराग्राफ से I started to just look at Ranga and the beginning point of Ranga's marriage. I think we are well aware about this point because it was discussed in our previous lecture also. We didn't have many people who knew English. 10 years back, already I have told you people कि बहुत लोग ऐसे थे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी उनके विलेज में. साहली विलेज मैसूर में उनका विलेज था. Author had highlighted the importance of his village. He had highlighted the importance of title, and he had highlighted the importance of mango tree and other important things of his village. Now just look at the next point. He wanted to highlight that particular point that 10 years back, number of people were not the knowledge of English language. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. उस जमाने में यदि कोई भी विलेज से बाहर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे. जो विलेज में एजुकेशन होती थी सिंपल सी वही करवाते थे. लेकिन ये रंगा के पापा ने जो कि अकाउंटेंट थे विलेज के, उन्होंने अपने बेटे को बैंगलोर भेजा पढ़ने के लिए. So that was a big point if we look at that particular point. अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं, कहते हैं कि हमारे विलेज के अकाउंटेंट ने वो पहला ऐसा पर्सन था जिसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजा था. डिफरेंट नाउ. अब ऑथर सिचुएशन बता रहा है 10 years बैक. अब immediately we look at the same line, not same line, same paragraph. It's just highlighting the things कि आज के जमाने में यानी right now the things are quite different. अब साहली विलेज में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये इंग्लिश लैंग्वेज आती है. They are well aware about English language. So wanted to highlight the conversion. Now just look at the next. There are many who know English during the holidays. You come across them on every street talking in English. अब ये just look at the beauty of this sentence. कहते छुट्टियों में आप आना हमारे उसाहली विलेज में. You would be able to look at the evidence of what he was saying. वो कह रहे कि आप छुट्टियों में यहाँ पे आना. आप जब गली में देखोगे people of Usaili village would be found talking or interacting in English. तो यहाँ वो लाइव प्रूफ देना चाहता है क्योंकि ये कहानी जो है एक कॉमिकल वे में लिखी गई है. तो वो हमें यहाँ पे रीडर्स को हाईलाइट कर रहा है कि आप छुट्टियों में अगर यहाँ विजिट करोगे यू वुड बी एबल टू गेट द एविडेंस ऑफ व्हाट बस कि तुम्हें एविडेंस मिलेगा. किस चीज का एविडेंस मिलेगा? पीपल वुड बी interacting or communicating in English. Now just look at the next point. Those days we didn't speak in English, nor did we bring in words while talking in Kannada. कहते उन दिनों में, उन दिनों का मतलब 10 years back. अब
पे ऑथर जी कह रहे हैं कि उन दिनों में यानी कि 10 साल पहले वहां के लोगों को इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी। तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, यानी कि कई बार होता है ना, उनकी बेसिक लैंग्वेज कन्नड़ थी। जैसे हमारी अगर सपोज बेसिक लैंग्वेज जहाँ हम रहते हैं हिंदी है या पंजाबी है, हम कुछ वर्ड अगर इंग्लिश में यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पे ऑथर हाईलाइट करना चाह रहा है कि उन दिनों में हम ना इंग्लिश में बोलते थे, ना ही हमें इंग्लिश के वर्ड्स आते थे, यानी कन्नड़ प्लस इंग्लिश भी नहीं होती। कन्नड़ प्लस इंग्लिश का मतलब I think a few words of English to be used with Kannada, then we would be able to highlight the point to mixed language. जैसे हम हिंदी के साथ बोलते बोलते कुछ वर्ड अगर इंग्लिश के बोलते हैं, दैट इज मिक्स्ड लैंग्वेज। कहते उन दिनों में इंग्लिश वाज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, यानी कि लोगों को वर्ड्स की भी नॉलेज नहीं थी, तो वो मिक्स भी नहीं करते थे। दे यूज्ड टू स्पीक इन कन्नड़ ओनली, क्योंकि कन्नड़ वाज द बेसिक लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। So now I think you are crystal clear up to this particular point. Now just move to the next. Open your book on page 18. Conversion कर लीजिए, 17 pages over. What has happened is disgraceful. Believe me. यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो कन्वर्जन हुआ है लैंग्वेज का, लोग अपनी कन्नड़ लैंग्वेज को भूल के इंग्लिश की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। डिस्ग्रेसफुल होता है नेगेटिव साइन, इंसल्ट। यानी he wanted to convey the message that we must love our language, whatever the language may be Haryanvi, maybe Punjabi, maybe Hindi, maybe Kannada. तो आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर। यहाँ ऑथर जी अपने व्यू पॉइंट दे रहे हैं कि जो हुआ है, जो हुआ का मतलब जो लैंग्वेज कन्वर्शन हुआ है दैट वाज नॉट अप टू मार्क, वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं। दैट इज डिस्ग्रेसफुल। नाउ जस्ट लुक एट द पॉइंट्स। तो बिलीव मी वर्ड यूज किया गया है। बिलीव मी का मतलब वो कहना रीडर से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं कॉमिकल वे से। तो कह रहे हैं मेरे में ये विश्वास रखो कि आप जस्ट एबल टू हाईलाइट द पॉइंट विद 100% कॉन्फिडेंस कि ये जो कन्वर्जन हुआ है, लोगों ने अपनी लैंग्वेज छोड़ के इंग्लिश की तरफ भागना शुरू कर दिया है या मिक्सिंग शुरू कर दिया है कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। पॉजिटिव साइन, आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। Another day, I was in Ramarao's house when they bought a bundle of firewood. Ramarao's son came out to pay for it. अब वहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि हाउ द थिंग्स वर 10 years बैक। 10 साल पहले क्या सिचुएशन थी। The author is highlighting live example to give the evidence. तो क्या एविडेंस दे रहे हैं? Just look at this particular point. कहते हैं on the other day का मतलब उस दिन I was in Rama Rao's house. ऑथर जी कह रहे हैं कि मैं अपने फ्रेंड रामा राव के घर में था। रामा राव जो है ऑथर के फ्रेंड है, वो कह रहे हैं कि तो मैं रामा राव के घर में था। तो व्हाट हैपेंड, तो दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। तो उन्होंने जब वहां पे कोई बेचने वाले आई थी लेडी, फायरवुड, उन जमाने में गैस नहीं होती थी, स्टोव नहीं होते थे, लोग अपना खाना बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए फायरवुड का यूज करते थे, लकड़ियों का यूज करते थे। तो कहते हैं एक लेडी बेच के आई फायरवुड, उन्होंने परचेज किया। रामा राव देवर्ड इसलिए यूज किया गया है, उसकी फैमिली को हाईलाइट कर रहा है। they bought a bundle of firewood. Rama Rao came out to pay for it. रामा राव के जो बेटे थे, उस लेडी को जितने की भी फायरवुड थी, बंडल ऑफ स्टिक्स जितने का भी था, उसकी पेमेंट करने के लिए जब वो आए, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ही आस्क्ड द वीमन हाउ मच शुड आई गिव यू। फायरवुड बेचने वाली लेडी से पूछा कि कितने पेमेंट करूं, कितने का है ये बंडल। So that query was asked, that question was asked by Rama Rao's son. I think crystal clear so far as first paragraph of
page number 18 is concerned. Now just look at the उनके बेटे ने, रामाराव के बेटे ने उस लेडी से पूछा जो कि फायरवुड बेचने आई थी कि कितने पेमेंट करूं मैं आपको, तो 4 pies she said. कहा कि 4 pies. क्या होता है? I think you should be able to look at this particular term in a very fine way. So ये it is a monetary unit. It is a unit of money. इसका लिख लीजिए, just kind of the details. तो क्या होता है बेसिकली, जब इंडिया और पाकिस्तान अभी अलग अलग नहीं हुए थे तब ये पाइस जो था इट वाज कंसिडर्ड एज द मॉनेटरी यूनिट, यानी ओल्ड यूनिट ऑफ मनी या ओल्ड टाइम मॉनेटरी यूनिट हम कह सकते हैं। और 1 पाइस जो कि उस टाइम पे कीमत क्या थी, व्हाट वाज द कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ 1 पाइस, दैट वाज इक्वल टू 1/4 ऑफ आना। पुराने जमाने में आना चलता था, आने का 25% होता था। तो ये ओल्ड मॉनेटरी यूनिट है। जब इंडिया पाकिस्तान जो थे अलग अलग नहीं हुए थे, पाइस जो था दैट इज यूज्ड टू बी कंसीडर्ड एज द बेसिक ओल्ड टाइम मॉनेटरी यूनिट। और 1 पाइस उस जमाने में कितने वैल्यू क्या होती थी, 1 पाइस used to be equal to 25% of ANA or 1/4 of ANA. I think you must have written down this particular term. Now next step. तो उसने कहा, उस लेडी ने कहा कि इसकी कॉस्ट है 4 pies. So what had happened? She said the boy told her he didn't have any change. रामाराव के बेटे ने उस लेडी को बोला कि was not with change. चेंज का मतलब होता है खुले पैसे, जो जिसको बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई चेंज नहीं है एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उन्होंने उस लेडी को कहा कि कल ले लेना पैसे, शी शुड कम टुमारो द नेक्स्ट डे टू टेक द मनी। तो उन्होंने उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया उस लेडी को। The poor woman didn't understand the English word change. उस लेडी को जो इंग्लिश वर्ड चेंज था बिल्कुल समझ नहीं आया। जो फायरवुड बेचने वाली लेडी थी उसको ये चेंज का मतलब नहीं समझ आया। जब रामाराव के बेटे ने कहा कि चेंज नहीं है मेरे पास तो कल आ जाना, तो what had happened, you have to look at the thing and went away muttering to herself. मटरिंग होता है जब हम मुंह में अपने आप ही बात कर रहे होते हैं, लो वॉल्यूम में अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं। वो मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई कुछ बोलती हुई चली गई, क्योंकि तो उसको नहीं समझ आया कि क्या कह रहे हैं रामाराव के बेटे कि चेंज जो है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि चेंज को उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। Now just look at this particular point. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. तो यहाँ ऑथर जो है बहुत फ्रैंकली बात कर रहा है, कुछ नहीं छुपा रहे। The way of writing, so far as this particular story is concerned, is very fine. क्या ऑथर जी कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता था चेंज का मतलब क्या, इंग्लिश वर्ड है। Wanted to highlight that particular point that even he didn't know the meaning of change at that particular moment. कैसे पता चला? Later when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. बाद में जब मैं रंगा के घर में गया, रंगा के घर में जाने के बाद जब मैंने इंक्वायर किया उस वर्ड का मीनिंग, तो author was highlighting that particular point that he was able to understand कि चेंज का मतलब होता है खुले पैसे। उस ऑथर कह रहा है कि मुझे भी इस बात का पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है, मुझे तब पता चला जब मैं बाद में रंगा के घर गया और मैंने रंगा से पूछा।
क्योंकि रंगा एक ऐसा लड़का था जो कि बेंगलोर से इंग्लिश पढ़ के आया था। यानी कि ये पॉइंट एक एग्जाम्पल एविडेंस दे रहा है कि उस जमाने में people were not able to look at any English word. So here change is English word. I think crystal clear up to this particular point. So now look at the next paragraph of the same page. यानी ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि 10 years back there was very different environment. People were not the knowledge of English language. The author has proved this particular point with a very fine example. Now just look at the next. This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. Priceless commodity. क्या होती है बेटा priceless commodity? इस टर्म को भी समझ लीजिए। कमोडिटी होती है चीज, प्राइसलेस होती है जिसके लिए कितनी भी पेमेंट कर दे उसको प्राप्त ना कर सके, जिसको प्रेशियस कहा जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये प्रेशियस चीज कम्युनिटी यू हाईलाइट किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। 10 साल पहले हमारे विलेज में लोगों को नहीं आती थी। इट वॉज नॉट वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब was not, people were not in the knowledge of that particular language so far as village was concerned. Decade होता है period of 10 years. I think you are crystal clear so far as two meanings are concerned, so far as the second paragraph is concerned. That was why Ranga's homecoming was a great event. यही कारण था जब रंगा बेंगलोर से इंग्लिश पढ़ के आया और was exceptional केस कि उन्हीं के पापा ने उनको बाहर भेजा था, कोई और बच्चा विलेज से पढ़ने के लिए बाहर नहीं गया था। यही बेसिक रीजन था कि जैसे ही वो 6 मंथ की एजुकेशन बेंगलोर से लेने के बाद वापस आया तो दैट वाज वेरी ग्रेट इवेंट। होम कमिंग होता है जब हम कहीं से अपने नेटिव टाउन में या नेटिव प्लेस में आते हैं जहाँ हमारा होम टाउन होता है। यानी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि रंगा की होम कमिंग जो थी यही कारण था कि बहुत बड़ी इवेंट थी। बड़ी इवेंट थी, इट वाज अ वेरी बिग थिंग कि कोई बच्चा बाहर गया ही नहीं था। ही वाज द फर्स्ट वन who had got the opportunity to move out for education, that too for 6 months only. So I think crystal clear up to this particular point. आगे चलिए, you have to look at the next. So far as the same paragraph is concerned, people rushed to his doorstep announcing the accountant son has come. जैसे ही रंगा जी अपनी एजुकेशन बेंगलोर से प्राप्त करके आए, क्या था? What was the situation? Now look at the situation. So situation was very different. Now just look at this particular point. People rushed to his doorstep. लोग जो थे उसके डोर स्टेप पे पहुंच चुके थे। जितने भी विलेज के लोग थे they were at the doorstep of Ranga's house. क्या होता है डोर स्टेप? डोर स्टेप होता है जिससे जहाँ से एंट्री होती है घर के अंदर जाने की। Now just look at this particular point. तो लोग पहुंच चुके थे, रंगा को मिलना चाहते थे कि हम देखें तो सही कि क्या पढ़ाई करके आया है, कैसा है। अकाउंटेंट सन हैज कम। सारे विलेज में ये न्यूज फैल गई थी कि रंगा सन हैज कम आफ्टर जस्ट रिसीविंग एजुकेशन। The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे विलेज में कि ऐसा लग रहा है कि अकाउंटेंट के बेटे जी पढ़ाई करके वापस आ चुके हैं। And come, Ranga is here, let's go and have a look. लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, कह रहे थे चलते हैं उससे मिलके आते हैं, रंगा आ चुका है, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। जाके देखें तो सही क्या पढ़ के आया है, क्या कुछ चेंज हो गया है या सेम है, अपने कल्चर को तो नहीं भूल गया। People wanted to just
मीट रंगा। जब उनको पता चला कि वो अपनी स्टडीज पूरी करके वापस आ गया है, तो पूरे विलेज के लोग दे वर क्रेजी टू मीट रंगा इन ऑर्डर टू look at the conversions in him, or in order to just look at his well-being. क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं, विलेज के लोग जो होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। We look at cities, things are not in that particular order. तो उनका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है, उनको सबको ही अपने रिलेटिव समझते हैं, जितने भी विलेज के लोग होते हैं। तो सारे विलेज में बात फैल गया कि रंगा जी आ गए हैं, चलो चले मिलने उनसे। तो रंगा जी के डोर स्टेप पे बहुत रश हो चुका था। पीपल वर क्रेजी टू मीट रंगा। आई थिंक क्रिस्टल attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There is no performing monkey here. तो अब ऑथर जी भी, मैंने पहले ही आपको बोला है कि ऑथर जी, नरेटर जी भी सेम विलेज में रहते थे। तो व्हाट हैड हैपेंड? जब देखा कि इतनी भीड़ है रंगा के डोर स्टेप पे, तो ऑथर जी भी वहां चले गए। आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड। और वो बाहर, कोर्टयार्ड होता है बरामदा, तो बाहर जगह होती है ना जिसको बरामदा हिंदी में बोला जाता है, वेरांडा। तो वहां पे रंगा जी ऑथर जी खड़े थे। व्हाट हैड हैपेंड? देन what is the next point? You have to look at the things. Why have all these people come? तो ऑथर जी ने, नरेटर जी ने पूछा कि ये सारे लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं? तो अगला अगला क्वेरी क्या था उनका? There is no performing monkey here. कहते इतना रश क्यों है रंगा के डोर स्टेप पे? तो यहाँ कोई डुगडुगी का तो खेल नहीं हो रहा। मंकी परफॉर्मिंग होता है जब पुराने जमाने में लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, दे यूज्ड टू एंजॉय मंकी प्ले। मंकी प्ले होता था कि वो आई थिंक मंकी यूज्ड टू परफॉर्म अंडर द गाइडेंस ऑफ whosoever was looking after। वो भी मंकी परफॉर्मेंस इसलिए दिखाता था, वो पर्सन मनी अर्न करने के लिए। पीपल यूज टू एंजॉय दैट, क्योंकि उन दिनों में मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ वेरी, कोई ज्यादा टीवी नहीं होते थे, कोई आई थिंक मीडिया नहीं होता था। पीपल यूज टू एंजॉय दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि मंकी की डुगडुगी का तो खेल नहीं हो रहा, लोग इतने क्यों आए हुए हैं? So I think the query was made by the author to look at the big crowd. Now, beta, look at the next paragraph. A boy, a fellow without any brain, said loud English for loud enough for everyone to hear. जब ऑथर ने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो मंकी का शो तो हो नहीं रहा, तो डुगडुगी का खेल तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे ये जो इतना सारा रश क्यों है? एक बच्चा था, तो इस बच्चे को इंटरप्रेट किया गया है। देखिए ये इस पॉइंट से, बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, यानी ऐसा लग रहा था कि इट इज नॉट विद वेरी फाइन ब्रेन, क्योंकि बिना बात के आंसर देना जब तक कोई पूछे ना, तो दैट इज द साइन ऑफ ब्रेनी पीपल। So that is why these words are used to highlight that particular guy said loud enough for everyone to hear। एक लड़का था, उसने बड़ी ऊंची सी आवाज में बोला ताकि सारे सुन ले। तो क्या बोला उसने? जिस व्हाट आर यू डूइंग हियर देन? कहते अगर कोई उसने नरेटर का और ऑथर के जो था रिप्लाई दिया, जो उसने क्वेरी की थी कि यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? उधर डुगडुगी का खेल नहीं हो रहा, मंकी परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे हो? उसने ऑथर को क्वेरी किया, बैक क्वेरी किया, रिवर्टेड। नाउ जस्ट लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। A youngster, immature and without any manner। तो बच्चे को हाईलाइट करने के लिए ये कहा कि was mannerless। तो ये मैनरलेस निशानी होती है बेटे, आप भी अपनी लाइफ स्किल्स में ये एंटर कर लो। If
You are not asked for any query, you possess no right to answer. जब तक कोई प्रश्न तुमसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, नेवर आंसर द, तो इससे कोई बड़ा नहीं होता, इससे दैट इज अ वेरी नेगेटिव साइन। तो इसीलिए उस बच्चे को मीनिंगलेस वर्ड से हाईलाइट किया गया है, क्योंकि जब नरेटर ने पूछा कि यहाँ कोई मंकी परफॉर्म कर रहा है, यहाँ रश क्यों है, तो उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं अपने बड़े को आंसर दे रहा हूँ। तो उसका उस बच्चे ने बिना बात के आंसर दिया कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दैट वाज वेरी नेगेटिव साइन। So that is why mannerless word is used to highlight that guy. Now just next, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. ऑथर ने सोचा चलो इसने बोल दिया तो बोल दिया, that had come past. That is why he had not just wasted his time to interact with that guy. बच्चे को डांटने के लिए ऑथर ने अपना टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं माना। तो लगा कि that had become past, इस बच्चे ने तो ब्रेनलेस बच्चे ने तो बोल दिया। तो here the author never wanted to waste his energy by interacting on that particular topic. तो समझदार लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि अगर अगर कुछ irrelevant चीज होती है, they think that that had become the past। अगर कुछ ऐसा पॉइंट होता है, क्योंकि they never wanted to waste time, they never want to waste time for useless discussion। तो ऑथर ने कहा कि क्यों बच्चे से बहस करनी छोड़ो, इस बच्चे ने तो गलती की है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, अब तो जो बोल दिया तो बोल दिया। पर ये पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि दैट गाय वाज ब्रेनलेस। तो तुम्हें बेटा ख्याल रखना है, कभी भी बिना बात के आंसर नहीं देना। नोट डाउन दिस लाइफ स्किल। चैप्टर तो शायद तुम्हें भूल जाए 11th करने के बाद, पर ये लाइफ स्किल जो है वो तुम्हारे साथ चलेगी। जब तक तुम्हें कोई क्वेरी के लिए या डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करता, चाहे कहीं पे भी हो, नेवर आंसर, नेवर हाईलाइट एनी रिप्लाई। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। आगे चलिए, नाउ जस्ट लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। If we look at next paragraph, we have to look at the point. See how many people there. Ranga came out with a smile on his face. जब रंगा ने देखा कि बड़े सारे लोग आए हुए, I was able to observe number of people because almost all the people of Sosali village was there. So इतना सारा crowd देख के what had happened, रंगा came out with a smile on his face. रंगा जो थे बाहर आए, there was smile on his face because he was very fine guy. तो बाहर आए वो, had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. At this particular point, सब लोग डोर स्टेप पे खड़े थे, रंगा अंदर नहीं गए। तो यहाँ इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए ऑथर जी क्या कह रहे हैं कि अगर हम रंगा के घर में चले जाते तो क्या होता, what had happened, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta। जो रंगा जी का घर था इसमें कन्वर्ट हो जाता ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा में। इसको आप लिख लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। क्या है ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, ये वर्ड क्यों यूज किया गया है, जस्ट नोट डाउन दैट। सो बेसिक टर्म यू हैव टू राइट इट डाउन। बेटा ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा क्या है, ये जस्ट राइट इट डाउन। ये बेटा ब्रिटिश जब थे, ब्रिटिश के जमाने में फोर्ट विलियम बनाया था उन्होंने, और उसके अंदर डंजन था। डंजन क्या होता है, बेसिकली पर्टिकुलर वर्ड इज अंडरग्राउंड सेल। अंडरग्राउंड प्रिजन सेल, जेल जो होती है जिसको बोला जाता है,
तो व्हाट हैड हैपन, तो एक बार क्या हुआ था, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फैक्ट, कि किसी कारणवश वहां बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया था। दैट डंजन इज वेरी स्मॉल, उसमें बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे उनको डाल दिया गया था, और इतनी भीड़ हो गई थी उस डंजन में, जो अंडरग्राउंड डंजन था, जिसके कारण मैनी पीपल डाइड ड्यू टू सफोकेशन, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, इसके कारण सफोकेशन के कारण। So I think you are crystal clear. If you are not noting down, note down the meaning of this particular term. First 4 billion, first designed by British people. तो उसके अंदर डंजन है, डंजन होती है अंडरग्राउंड प्रिजन। एक बार क्या हुआ था, बहुत सारे प्रिजनर्स को उसमें बंद कर दिया गया था, और जिसके कारण वहां सफोकेशन हुई, सफोकेशन के कारण नंबर ऑफ पीपल डाइड। तो यहाँ पे इसलिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑथर जी कर रहे हैं इस काम को। वो कह रहे कि अगर हम गंगा के घर के अंदर एंट्री कर लेते तो उसका घर जो था, उसका सिचुएशन भी वैसा ही हो जाता है। जस्ट it would have turned into black hole of Calcutta. I think crystal clear so far as this particular term is concerned. You are crystal clear. Thank God it didn't. तो शुक्र है कि हम लोगों ने और रंगा के घर में एंट्री नहीं किया, और वो जगह ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा की तरह नहीं बना। तो ऑटोमेटिकली here the author is feeling very grateful to look at that particular point. गॉड को थैंक्स कह रहे हैं कि शुक्र है कि वहां हमने उनके घर को सफोकेटेड नहीं बनाया, अदरवाइज इट वुड हैव बीन सेम एज ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, जहां पे जो मिसहैप हुई थी, इट वुड बी इन रंगा's house also due to suffocation. Now just look at the things. Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. लोगों ने बड़े ध्यान से रंगा की तरफ देखा, विलेज पीपल ने, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रंगा जो है बिल्कुल कोई कन्वर्शन नहीं आया, क्योंकि 6 मंथ के लिए वो पढ़ने के लिए गया था। पीपल हैड ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो चेंज इन दैट ही वाज सेम। विलेज के पीपल जो होते हैं, दे आर कीनली ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ईच वन ऑफ द एवरी वन ऑफ द विलेज। तो उन्होंने बेसिकली देखा, उनको नहीं लगा कि कुछ चेंज हुआ रंगा में। 6 मंथ के से पहले जैसा था वैसे ही अब था। तो चलिए, an old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, the Jalevara is still there. एक ओल्ड लेडी उसी क्राउड में थी, तो उसने क्या किया, जस्ट लुक एट द एक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लेडी। उसने what had she done, just look at the thing, बिल्कुल पास खड़ी थी वो रंगा के। उसने अपना हाथ जो था, he ran her hand over his chest, अपना हाथ से ऑब्जर्व करना चाहती थी। उसने अपना हाथ रंगा की चेस्ट पे रखा। क्यों रखा? चेक करने के लिए कि उसने जानेवरा पहना हुआ है। जानेवरा बेसिकली ब्राह्मण्स जो होते हैं वो पहनते हैं, ये कन्नड़ में इसको जानेवरा बोला जाता है, व्हाइट कलर का थ्रेड होता है। तो ऑब्जर्व करना चाहती थी कि इसने पहना है या नहीं पहना, कहीं उतार तो नहीं दिया। तो जैसे ही उसने हाथ से टच करके ऑब्जर्व किया उस लेडी ने, she had declared that particular point that guy had not lost his caste. क्योंकि ब्राह्मण के लिए पंडित जो है, ये जनेऊ जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो उसको व्हाइट कलर का थ्रेड पहनना ही पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली दैट लेडी वाज able to just check the point in a very loud and clean way, and she had declared that that guy
had not lost his caste. में ये माना जाता है कि अगर जनेवा नहीं पहना या उतार दिया है किसी बच्चे ने, इसका मतलब he had done disrespect to his caste. तो इसीलिए लेडी ने डिक्लेयर किया जब देखा कि रंगा ने जनेवर पहना हुआ था and he had not lost considered it less important, तो उस लेडी ने डिक्लेयर किया कि उसने अपनी रंगा लाभ। तो वो लेडी जो थी के बाद चली गई। आफ्टर लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट रंगा used to respect his caste, कि उसने जनेवर पहना हुआ है, she यानी she मतलब that lady had gone away from that particular place. So next paragraph, once they realized that Ganga still had the same head, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar. ये ह्यूमर क्रिएट करने के लिए ये वर्ड यूज किए गए हैं कि एक बार लोगों ने जज करने के बाद, यानी कि रंगा के सेम आईज हैं, लेग्स हैं, नोज हैं। देखिए आईज, लेग्स, नोज जो फिजिकल आउटलुक होती है इंसान की कभी चेंज नहीं होती। यहाँ पे ऑथर जो है ह्यूमर क्रिएट करना चाहता है, इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहा है चैप्टर को, so that is why he had used this particular words. The crowd melted away like a lump of sugar in the child's mouth. जितने भी विलेज के लोग डोर स्टेप पे इकट्ठे हुए थे रंगा को मिलने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, they had gone away. तो इसको ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन दिया गया, like a lump of sugar in the child's mouth. जैसे शुगर जो होती है बच्चे के माउथ में डाली जाती है, अगर बच्चा शुगर जो है वो खाने लगता है, जैसे वो उसके मुंह में मेल्ट हो जाती है, इमीडिएटली the crowd had gone away from that particular place after observing रंगा कि वो सेम है, उसमें कोई कन्वर्जन नहीं आया। Now I think this is all for today. The time says that we must close this particular